this Friday forum, and I request Amruta to introduce the speaker, and then we'll proceed further. Amruta, please. Yeah. Good evening, everyone. Wishing you all a very happy new year. It's an honor for me to introduce our guest speaker for today's session, Mr. Pawan Dwivedi sir. He is an academician on wheel for 19 years. Pawan sir traveled more than 1 million kilometers by road. Currently, he is Deputy Registrar at Parul University, Vadodara. He is a convener for spiritual leadership and temple management. He has also worked as a co-chair academics at Baroda Management Association, associate professor and registrar corporate relation and training and placement at Parul University. Pawan sir is a head of training and placement at Parul Group of Institute. He is also a founder member of Entrepreneurship Development Cell, assistant professor and training and placement officer at Parul Group of Management Institute. He is convener for the Integrated Training and Placement Cell, GTU, assistant professor and head of training and placement cell at Birla Vishwakarma Mahavidyalaya. He is also a lecturer at Boriavi Arts, Commerce and Management College, visiting faculty at ICFAI MBA program, research associate under UGC, SP University, Vallabh Vidyanagar, faculty at HM Patel Career Development Cell, VV Nagar, visiting faculty at AISECT BBA program. He is also founder member coaching for Planet Foreign Education, center manager and head marketing PT Education nationwide, which is the organization for CAT, Z, GRE and many more. Verbal faculty for PT Education. His achievements are: have published 3 books and 15 research papers, PhD guide to 4 students, which includes 1 international scholar, and have addressed around 350,000 students in India and neighboring nations, have been instrumental to place 9,000 plus students in MNCs and Indian industries, have imparted training to 3,000 plus industries, professionals and academicians, also stood 3rd in National Youth Parliament, which was felicitated by Parliamentary Minister Affairs, won state and national level debate competitions, certified trainer by Infosys, that is soft skills, imparted training to 5,000 plus aspirants for UPSC Civil Services, GPSC, Bank PO, SSC, CAT, GSET, TIS, GRE and GMAT. He has also many followers on social media, like LinkedIn followers, which is 15,500 plus, Quora views 20,300 plus, Facebook connects 20,000 plus, YouTube view 60,000 plus, Facebook video views, which is the maximum, that is 70,000 plus. The topic for today's session is control your anger and emotional outbursts. This is really very different and interesting session. Very rightly said, control your anger, otherwise you will start losing your people. Control your emotions, else you will lose yourself. Isn't it right thing? I welcome you, sir, on behalf of ISTD Anand family. And now and everyone should control anger because it is just 1 letter away from danger. Now I invite Pawan sir to start the session. Thank you. Pranam, ma'am. Hope I'm audible. Am I audible? Yes, sir. Please Yes, go sir. ahead. Yeah, thank you. Thank you so much. So it's my great fortune that I'm interacting once again. My Karma Bhumi, my Dharma Bhumi, the land which has given me everything, the place which has blessed me, whatever I am today, and that is Vallabh Vidyanagar, Anand. A place which has blessed Dr. Varghese Kurian to us, and due to him,
We got white revolution and yellow revolution both. A place which has given us Sardar Patel, who became the next Chanakya of India and united entire nation and gave us one nation. And due to that, without passport, we are traveling from Uttar Pradesh to Gujarat. Otherwise, perhaps, if Anand could not have offered us Sardar Patel, we might be have number of nations in one nation. So I'm really thankful to this land and the people, those who belong to that land, that place. Definitely all are very honorable, very respected to me, very close to my heart. Let me begin my entire discussion, and the discussion is growth and emotional outburst. This is my favorite topic, and almost before 1.5 years, I decided in my personal life that I'll never go for any sort of angry behavior. And with all accountability, responsibility, proud, and with all consciousness, let me share, पिछले 1.5 साल में एक बार भी ना मैंने गुस्सा किया है, न फ्रस्ट्रेशन, न किसी भी तरह का झुंझलापन. So whatever I'm sharing today, that is on the basis of experience and experiment I have done in last couple of years. So that I'm going to share with you. But in this entire process, one thing is very important. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहे? वहां से मैं बात शुरू करूंगा. आप में से कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ अपना वीडियो ऑन करिएगा अगर आप हॉस्टल में रह करके आपने पढ़ाई किया है तो. जो लोग हॉस्टल में रहे हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो हॉस्टल. और उसने हमको वो सारी चीजें सिखाई हैं, हमको वो सारी चीजें सिखाई हैं जो शायद पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में टॉलरेट करने के लिए आवश्यक है. सो टुडे द पॉइंट आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड, ये अधिकतर चीजें कहीं ना कहीं मैंने हॉस्टल से सीखी हैं, जिसको मैं फॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा. और अब मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मुझे विश्वास है कि मैं शेयर कर पाऊंगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मुझे होस्ट बनाए ताकि मैं अपना पीपीटी शेयर कर सकूं. Sir, you can share it now. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much for allowing me to share. Well, so control your anger and emotional outburst. Why actually one should control? Whenever I go for the career counseling, I do offer one-to-one counseling to almost all the age groups. चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे ओल्ड एज हों, मैरिड हों या अनमैरिड हों. जब भी काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं तो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है, कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रूमिंग की प्रोसेस रही है, उनकी जो पेरेंटिंग की प्रोसेस रही है, उनका जो बचपन रहा है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है, उसका ही आउटकम है आज की तारीख की मैक्सिमम समस्या है. द पॉइंट इज, यदि आप, हम सभी लोग आज की तारीख में अपने एंगर पे, अपने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे परिवार के लोग जो हमसे अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसी केसेस आती हैं. और मेरी बात से यहाँ पे जो भी एकेडमिशियंस और बिजनेसमैन और अलग अलग प्रोफेशन से जो जुड़े हैं मेरी बात से एग्री करेंगे. तो अगर हमारे परिवार के लोग हमसे अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते तो वो कहीं और शेयर करेंगे. और जहां वो शेयर करने जा रहे हैं, कई बार वो ऐसी जगह पे शेयर कर देते हैं जिनके अपने इंटेंशन अलग होते हैं. और समाज की अधिकतर समस्याओं का कारण ये होता है, जो भी समाज में, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, चाहे चीटिंग हो, चाहे फ्रॉड हो, ये सारी चीजों के पीछे के कारण बहुत बार परिवार के करीबी लोग होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे मित्र हों. और ये कब होता है? जब हमारे आसपास के लोग हमसे ओपन शेयर नहीं कर पाते तो कहीं और शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग वाले लोग क्लोज के ही होते हैं. Therefore I have quoted a line, अगर आप अपने बच्चों को, धर्म मतलब होता है जीवन की स्टाइल, जीवन जीने के पैटर्न, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो कोई ना कोई उनको गलत चीज सिखा के चला जाएगा. और हमारे सामने है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. चाहे संजय दत्त की अगर मैं बात करूं तो सुनील दत्त जैसे महान व्यक्ति शायद अपने पुत्र को समय नहीं दे पाए, तो संजय दत्त जैसा व्यक्ति तैयार हुआ. और ऐसे बहुत सारे लोग, मिलियन लोग एग्जाम्पल्स हमारे आसपास में हैं जिनका हम लोग एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं. आप एडोल्फ हिटलर की
मैं कैफे पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप इस चीज का जिक्र पाएंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने परिवार में इमोशंस को कंट्रोल करके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए ताकि परिवार के लोग खुल करके उनसे अपनी बातों को शेयर कर पाए। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स एज वेल। अगर मैं हमेशा एंग्री मोड में रहूंगा, हमेशा मैं ऐसे मोड में रहूंगा कि लोग न मुझसे सजेशन दे सकते हैं, न हमें हमारी पूरी प्रोसेस में कहीं कोई फ्लॉ है तो उसको हमको बता नहीं सकते हैं, तो आने वाले समय में हमारा डिपार्टमेंट या हमारा यूनिट अथवा हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा। और इसी नाते मैं चाहता हूं कि शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए। सतराम भगवान की कथा का जो 5वां चैप्टर है वो इसी मुद्दे पर है, एंड दैट इज राजा तुंगध्वज शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और वहां पर कुछ ग्वाला जो है सतराम भगवान की कथा सुन रहे होते हैं और सुनने के बाद उनको प्रसाद ऑफर करते हैं। वो प्रसाद नहीं लेते, उनको ऐसा होता है ये ग्वाले उनके हाथ का प्रसाद मैं क्यों खाऊं। द पॉइंट इज आप राजा हैं और वो आपके राज्य के सिटीजन्स हैं। आप भले बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी भावनाओं की इज्जत करना। मेनी टाइम्स हमारा जो एज ग्रुप है, जब हम लोग पले बड़े जब बढ़ रहे थे तो बर्थडे सेलिब्रेशन जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। मेरे बात से परमार सर एग्री करेंगे, राजू सर एग्री करेंगे कि हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हमको पता ही नहीं होता था बर्थडे क्या चीजें होती है। धीरे धीरे फैशन जब आया तो पता चला अच्छा बर्थडे भी सेलिब्रेशन होता है। मैं सही में गलत हूं सर? राइट। जब बर्थडे सेलिब्रेशन की बात आई तो हमको अभी भी संकोच होता है जब बर्थडे की केक काटना हो और ऐसे हम चाकू उठाते तो हमको समझ में नहीं आता काटना है कि नहीं काटना, क्यों सेलिब्रेशन है। बट द पॉइंट इज परिवार के लोगों ने उस सेलिब्रेशन को बड़ी उम्मीद के साथ ऑर्गेनाइज की है और आप राजा तुंगध्वज जैसी हरकत ना करें उसी समय नहीं 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 मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। फिर इसी में कुछ लोग जो है अलग अलग ग्रुप के मेंबर होते हैं, बर्थडे जो है वेस्टर्न कल्चर का सेलिब्रेशन का हिस्सा है, हमको नहीं मनाना है। ऐसे अलग अलग फिलॉसफी लेकर के हम चाहे अनचाहे अपने परिवार को अपने से दूर कर लेते हैं। और ये सतराम भगवान के 5वें चैप्टर में यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि आप भले राजा हो लेकिन आपके नागरिक, आपके समाज में जो लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजशाही परिवार से हो चाहे वो ग्वाले हो। द कंसर्न इज वेरी क्लियर दैट वी नीड टू लर्न। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे जब जो गाइड हुआ करते थे, पीएचडी गाइड वगैरह, राजू सर मेरी बात से एग्री करेंगे, आप तो हमेशा गाइड्स लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारे गाइड से हमारे साथ जो किया वही हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ करेंगे, सास भी कभी बहुत ही, तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। द कंसर्न इज हमारे साथ जो गलत हुआ वो हमको रिपीट नहीं करना है और यही जनवरी मंथ हमको सिखाता है। सो अभी अमृता मैम ने कहा नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। क्यों? जानूस ग्रीक गॉड हैं जिनके नाम से जनवरी मंथ का नाम पड़ा है और इनके 2 फेस हैं। ग्रीक गॉड के 2 चेहरे, जैसे हमारे ब्रह्मा जी के जो है 4 सर हैं, 4 वेद मतलब 4 सर हैं, उसी तरह से जानूस के 2 सर हैं। एक भविष्य है और एक इतिहास है। रोज हम गॉड जानूस का जीवन जीते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो कल तक के जितने भी अनुभव हैं उनके बेस पे हम आज और आने वाले कल को ड्राफ्ट करते हैं। हमने जो गलतियां की हैं उसको कैसे लिसन कर सकें, कम कर सकें, और जो हमने कल तक अच्छे काम किए हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, यही हमारी रोज की फाइट है। इसीलिए हम 1 जनवरी को प्लेज लेते हैं कि इस साल तक हमारी गलत प्रैक्टिसेस को हम इस साल छोड़ देंगे। अभी तक जो गलत प्रैक्टिसेस थी इसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ एक ही दिन क्यों, रोज सुबह एक नया वर्ष है, क्यों ना रोज सुबह उठ करके हम प्लेज लें कि कल तक हमें गलती करते था से नहीं करेंगे। अगर हम ये चीज डेवलप कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकतर समस्याओं का समाधान मिलेगा। द कंसर्न इज जानूस हमको सिखाते हैं कि हर डे एक लर्निंग है। हमको एक एनालिसिस होनी चाहिए हमारी कि कल तक हमने जो किया उसमें क्या गलत था, क्या अच्छा था। अब होता क्या है, बहुत सारी चीजें हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम एक फीलिंग बिल्ड करते हैं और वो फीलिंग कई बार ओपिनियन में कन्वर्ट होता है और जो ओपिनियन कई बार बहुत ही स्टॉन्च हो जाता है जिसको हम कन्विक्शन कहते हैं और आगे चल के मैसिव बिलीफ हो जाता है, जिसके नाते राइट्स होते हैं, जिसके नाते कई बार जेंडर बायस्ड हम होते हैं, कई बार हम ज्योग्राफिकल बायस्ड होते हैं, कई बार हम रेशियल बायस्ड हो जाते हैं, कई बार हम व्यक्ति
से संबंधित पाए हो जाते हैं। कई बार हम मान ही लेते ये तो एवज होए, ये हैं तो ऐसे ही होंगे, ये हम बिल्ड करते हैं। मेरा ऐसा मानना है प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, पांचों उंगलियां पांचों अलग हैं। पांडु के 5 पुत्र पर पांचों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स दो की कॉमन नहीं है। एक गुरु, एक पिता, एक माँ, एक तरह का जीवन, सब कुछ एक तरह का, लेकिन पांचों अलग हैं। द कंसर्न इज वेरी सिंपल। जुड़वे संतान भी अलग होते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ना 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 आप कम्युनिटी ना लोग को आवच, आप व्यक्ति आओच। जिस दिन हमने ओपिनियन बिल्ड करना शुरू कर दिया, वहीं से समस्याओं का प्रारंभ शुरू हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति को हमेशा ओपन होना चाहिए, नई चीज जानने के लिए, नई चीज सीखने के लिए। जब तक हम ओपन नहीं होंगे, दुनिया में आज तक कोई भगवान नहीं बना जब तक उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी है। कोई भगवान नहीं बना। एक आप नाम बताइए जिसने अपनी जमीन छोड़ी और महान बन गया हो, जिसने अपनी जमीन न छोड़ी हो और महान बन गया। एक नाम आप ढूंढ के बता दीजिए, अपनी जमीन पे रहते रहते वो महान बन गया हो। ऐसा नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मतलब उसने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। जब कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें हर चीज एक्सप्लोर होगी, नई, बढ़िया, बेहतर और बेहतर। द कंसर्न इज वी नीड टू कम आउट। इसीलिए हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, राजू सर मेरी बात से एग्री करेंगे, परमार सर एग्री करेंगे, दिव्यांग सर एग्री करेंगे कि सेमिनार्स जो है नेशनल इंटरनेशनल के पॉइंट बढ़ जाते हैं। आप स्टेट लेवल का हो तो पॉइंट कम है, नेशनल है तो पॉइंट ज्यादा है, और इंटरनेशनल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप नए लोगों को मिल रहे हो, नए लोगों को मिल रहे हो तो आपका एक्सप्लोर बढ़ता है। तो जब तक हम यहाँ से खुलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए मेरे इंट्रोडक्शन में अमृता मैम पहली लाइन है, दैट इज ट्रैवल 10 लाख किलोमीटर बाय रोड। मैं बिलीव करता हूं कि ट्रैवलिंग इज द बेस्ट हॉबी। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। दूसरा है कुकिंग। आप ऐसे कितने लोगों को कुकिंग अच्छे से आती है? जस्ट अपना एक बार वीडियो ऑन करके एक सहमति दे दीजिए। कितने लोगों को कुकिंग आती है, खाना बनाना आता है? यस, वेरी गुड। मेरा ऐसा मानना है कि जिन मेल को खाना बनाना नहीं आता उनको शादी के अधिकार नहीं होने चाहिए, उनसे शादी का अधिकार छीन लेना चाहिए, क्योंकि मेल से बेहतर कुक सिस्टम में नहीं हो सकता। मैं अगेन ओपिनियन बिल्ड कर रहा हूं लेकिन फैक्ट बेस्ड है। आप किसी भी बड़े होटल में चले जाइए, आप किसी भी बड़े कार्यक्रम में चले जाइए, वहां पे जो कुक होगा वो मेल होगा। मेल क्योंकि दे बिलीव इन एक्सपेरिमेंट। माँ के हाथ का हलवा याद होगा, भले 25 साल पहले खाया, पर बाप के हाथ की चाय आपको याद नहीं होगी, क्योंकि बाप सुबह चाय बनाएगा तो अदरक डालेगा, शाम को बनाएगा तो उसमें तुलसी डालेगा, दूसरे दिन सुबह बनाएगा तो पुदीना डालेगा, तीसरे दिन सुबह बनाएगा तो सब इकट्ठा करके डालेगा। एक्सपेरिमेंट। मेल बिलीव इन एक्सपेरिमेंट इन कुकिंग एंड देयरफॉर मेल आर वेरी गुड कुक। ये सबसे अच्छा मेंटल रिलीविंग एक्सरसाइज है। सो अगेन, अगर आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है तो पहला सजेशन जो आपको मैं देना चाहता हूं, लर्न कुकिंग। लर्न कुकिंग। मेरी और मेरी वाइफ, वी बोथ आर वर्किंग। हम दोनों में रेस रहती है, सुबह जो पहले उठ जाएगा वो खाना बनाएगा। अब हम दोनों में कौन पहले उठ जाए इसकी रेस होती है। ऑफिस से घर जो पहले पहुंच जाएगा वो घर में खाना बनाता है। मतलब एक अलग सा एनवायरमेंट। हमारा संडे की पहले से, मंडे से प्लान होता है संडे को क्या बनने वाला है, वी प्लान इन एडवांस। इससे एक अलग हैप्पीनेस बिल्ड होती है। मैं तो मानता हूं कि अगर आप व्रत वगैरह रहते हैं तो आपको व्रत के फलाहार बनाने सीखने चाहिए। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है अभी, पीजी डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेंपल मैनेजमेंट। उसमें मैंने ये पूरे का पूरा सेक्शन डाला, फलाहार कैसे बनाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि वैरायटीज क्या, इस बार भी कल एकादशी है तो कल एकादशी के दिन कौन कौन से नए नए फलाहार के आइटम बनाए जा सके, क्यों ना जाने हम। पिछली बार हमने ये बनाया था, अगली बार हम ये बनाएंगे। लेट्स लर्न। ये आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देता है। आप दुनिया के किसी भी प्रेशर से आए हो, अगर आपने खाना बनाया, सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। जो खाने की खुशबू आती है, द अरोमा ऑफ द फूड मेक यू मेंटली फ्री। दिस इज द फर्स्ट। आपको शायद इसके पहले किसी ने बात नहीं बोली होगी। तो पहला है ट्रैवलिंग एंड दूसरा है दैट इज कुकिंग। अब मैं आता हूं एक बहुत मस्त एग्जांपल पे। महात्मा गांधी कहते थे, आप जो देखना चाहते हैं वो बन जाइए। आप जो देखना चाहते हैं वो आप
बन जाइए। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि मुझे अगर अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना हो तो क्या करना चाहिए, तो आइंस्टाइन ने बोला कहानियां सुनाओ। बोले और इंटेलिजेंट बनाना हो तो आइंस्टाइन ने बोला खूब सारी कहानियां सुनाओ। बोला और इंटेलिजेंट बनाना हो तो आइंस्टाइन ने बोला ढेर सारी कहानियां सुनाओ। जितना इंटेलिजेंट बनाना उतनी कहानियां सुनाओ। हमारी कमनसीबी ये है कि हम कहानियां ना पढ़ते हैं ना सुनाते हैं, खुद भी टीवी देखते हैं, बच्चों को भी टीवी दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा बैठ कर नागरिक शास्त्र पढ़े और हम बैठ करके नागिन सीरियल देखें। नहीं हो सकता। आपको अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 56% लोग दुनिया में जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको रीस्किलिंग की आवश्यकता है, लेकिन किसी को करना ही नहीं है। फिर नौकरी चली जाती है, फिर रोते रहते हैं बैठे बैठे। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं। तो एक मैडम थी, मैडम बड़ी परेशान रहती थी नौकरों से, टीम मेंबर से, बॉस से, बच्चों से, पति से, हर कोई में उनको कमियां दिखती थी। उनको लगता था दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई उनको लाइक नहीं करता, कोई उनको पसंद नहीं करता, कोई उनसे बात नहीं करता, हर कोई उनको डिसलाइक करता है, हर कोई उनको निग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है। ये सारी भावनाएं उनके अंदर बिल्ड हो गई थी। एक दिन एक डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को अपना पूरा उन्होंने दर्द दिल को बयान किया, बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया में सब खराब है, सब खराब है। भारत में तो सब खराब ही खराब है, कनाडा जाऊंगा तो वहीं पे स्वर्ग है। जो कनाडा चले गए उनको लगता है कि हम गलत जगह आ गए, अमेरिका में स्वर्ग है। अभी तो कल से अमेरिका भी स्वर्ग थोड़ा सा बदला हुआ है। अब वहां पे जो है गरुड़ पुराण लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। बट द पॉइंट इज कि मैडम को ऐसा लगता था कि ये बड़ी दुखी है जीवन में। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने सब सुना, सब देखने के बाद उनका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह निकलवाया। सब निकालने के बाद बोला मैडम मैटर सीरियस है, आप आज के बाद 9वें दिन पे मुझे मिलने आइए, क्योंकि 10वें दिन आपकी डेथ हो जाएगी। सो यू आर गोइंग टू बी रिमेन अलाइव ओनली फॉर नेक्स्ट 10 days। सो यू कम ऑन द 9th day। मैं तब तक देखता हूं कोई अगर मैं ट्रीटमेंट ढूंढ पाया होऊंगा तो डेफिनेटली आई विल ऑफर ऑन द 9th day, अदरवाइज 10th day यू आर सपोज टू डाई। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, मुझे लगा स्क्रीन पे मेरे अलावा और कोई है नहीं। ठीक है। ये ऑनलाइन चीज इतनी भयंकर है कि कभी कभी जो है महाभारत के संजय वाली फीलिंग आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता मेरे अलावा और कौन देख कौन रहा है। सो थैंक यू। सो अब मैडम जो है बड़ी चिंता होकर के घर पे जाती हैं, 9th day पे आती हैं डॉक्टर को मिलने के लिए। डॉक्टर पूछता है कि मैडम कैसा है अभी, आपको क्या लग रहा है? मैडम बोली नहीं, आई फाउंड कि माय हस्बैंड ही लव्स मी अ लॉट, माय किड्स दे आर हैविंग अ वेरी सीरियस अटैचमेंट विद मी, even my teammates they are very good, I found them very good, my boss is also very caring, very soft hearted, I mean I find everything very positive। ऐसा कैसे हो गया? And then doctor said कि मैडम इट्स ऑल माइंडसेट, इट्स ऑल माइंडसेट। ये पूरा एक खोपड़िया है ना, बड़ी विचित्र जगह है। आपने दिमाग में सोच लिया कि दुनिया सारी बुरी है तो सब बुरी है। मैं हमेशा लोगों को कहता घूमता हूं कि दुनिया में कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं बोल रहा हूं 10 लाख किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, हजारों किलोमीटर मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया है, आज तक कोई भी चीज कहीं खोया है तो वापस मुझे मिल गया है। कोई चीज कभी नुकसान नहीं हुई है। मुझे याद है आई यूज्ड टू रन प्लेसमेंट सेल इन बीवीएम। मेरे ऑफिस की चाबी जिसमें प्रिंटर था, इतने सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स किताबें होती थी, मेरी चाबी कभी जीसेट से मिलती थी, कभी एडीआईटी से मिलती थी। बच्चे उठा के ले जाते थे। मुझे ना कभी प्रिंटिंग पेपर कम पड़े, ना मेरा कभी स्टेपलर चोरी हुआ, ना कभी पेन चोरी हुआ, और हमेशा स्टूडेंट्स वहीं बैठे होते थे। द पॉइंट इज आप जो सोचेंगे, जिस तरह का बिहेवियर करेंगे, वही आपको मिलता है। द कंसर्न इज वेरी सिंपल, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समस्या यहां थी, समस्या यहां थी, और हम दूसरों को इंप्रूव करते रह गए। अधिकतर क्रोध का कारण यह है।
हमें क्रोध करने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन व्यक्ति स्वयं होता है। उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस, खुद की इच्छाएं, खुद के डिजायर्स होते हैं, और वो फुलफिल ना होने के नाते वो क्रोध करता होता है और दूसरों को आरोप लगाता है, इसके नाते मैं चिढ़ा, इसके नाते मुझे गुस्सा आया, इसके नाते मुझे ये हुआ। मुझे याद है जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो गांव में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता था। दिया जो घासलेट आती है ना, घासलेट के जो कांच का बोतल होता है उसमें कपड़े की बाती होती थी और घासलेट उसको जला करके हम लोग पढ़ते थे। मेरे दादाजी बैठ के महाभारत पढ़ते थे, हम अपना किताब पढ़ते थे। कभी मुझे मौका मिला तो मैं महाभारत में से वो पार्ट पढ़ता था जिसमें फोटो वोटो हो, रामायण में से वो पढ़ता था जहाँ फोटोग्राफ्स हो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें भीम मेरा उस समय का सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। मुझे एक बहुत अच्छी चीज भीम की लगती थी उस समय कि भीम को 100 तोमर, 150 बाण, 200 भाले मारे गए, तब जाके उनको क्रोध आया। मैं सोचू यार यहाँ पे तो कोई पतला सा सेफ्टी पिन भी चुभो दे तो उसके मुंह से दांत कम हो जाएंगे। इस व्यक्ति में किस लेवल का पेशेंस होगा। इतना उसके ऊपर हमला होने के बाद उस व्यक्ति को क्रोध आया। द पॉइंट इज, क्रोध हमेशा से व्यक्तिगत है। व्यक्ति चाहे तो क्रोध आएगा, व्यक्ति न चाहे तो क्रोध नहीं आएगा। यह साइकोलॉजी भी इसी चीज को बोलती है कि क्रोध व्यक्ति की सगवड़िया धर्म है, उसकी इच्छा के हिसाब से होता है। जब वो इंटरव्यू में जाता है, उसको चित्र विचित्र सवाल पूछे जाते हैं और उसको मालूम है पगार अच्छा मिलने वाला है, तो हर सवाल का जवाब देता है, उसको वहां पे क्रोध नहीं आता। और वही सवाल सिलेक्शन होने के बाद अगर किसी ने पूछ दिया और नौकरी पक्की है तो भाई को गुस्सा आता है, क्योंकि ऑप्शनल है। पहले वाले में उसके पास ऑप्शन नहीं था जब इंटरव्यू हो रहा था तब, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसको निकालना मुश्किल है कंपनी के लिए, तो अब भाई के पास गुस्सा होने के चांस हैं। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्रोध व्यक्ति की चॉइस है, क्रोध नेचुरल नहीं है। दूसरा, क्रोध आने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है रूटीन। हमारे रूटीन, अभी आजकल बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन सेशन लेता हूं, रोज के ऑन एन एवरेज 200 से 300 बच्चे ऑनलाइन में, और 10-15 बच्चों को मैं 1-to-1 मेरी मीटिंग होती रहती है। कई सारे एनजीओज हैं जो ऑर्फनेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी बच्चियों को पढ़ाते हैं जो जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख रुपए से कम है एनुअल। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। बच्चों से मैं बात करता हूँ, बच्चों से बात करें, पता चलता है 8 बजे की ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली होती है तो भाई साहब 7:45 बजे उठते हैं। कई लोगों को मैंने ऑफिस में भी देखा है कि 10 बजे ऑफिस जाना है तो 9:30 बजे उठ करके ऐसे ही तुरंत ऑफिस पहुंचते हैं। हमारा रूटीन भी अनदर रीजन है। मुझे याद है प्रमुख स्वामी महाराज के लिए बहुत ही पॉपुलर चीज है, वो हमेशा कहते थे कि दिन में 5 ऐसे काम करो जो अगले 60 ईयर्स तक तुम कंटिन्यूअसली करोगे। 5 इतने अच्छे ऐसे काम करो जो अगले 5 साल तक तुम लगातार करोगे, वो तुम्हारे बाकी दिन का शेड्यूल सेट कर देंगे। क्यों ना मैं अपने उठने का टाइम फिक्स करूं। हम लोग न्यूमरोलॉजी में, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, ज्योतिष भी हूं, तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी चीज कही जाती है, कोई भी बंदा आए ना आपको मिलने और आपको लगता है बड़ा परेशान है, बड़ी चिंतित है, उसको सुबह उठ करके उसको बोलिए कि सूर्य भगवान का सुबह दर्शन कर ले, बस दैट्स इट। उसके जीवन में अधिकतर समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट इज हमारा शेड्यूल में कैसे हम सेट करते हैं। हमारे शेड्यूल को हम बोरिंग बनाते हैं तो बोरिंग होगा, अच्छा बनाएंगे तो अच्छा होगा। हम सुबह मंडे को उठते हैं, रोते हैं मंडे है, ट्यूसडे है, तो डेफिनेटली आपके परिवार के लिए भी उसी तरह का पेनफुल होगा। व्हाई नॉट टू हैव अ वेरी एक्साइटिंग मंडे। पर कब पॉसिबल है? जब हमारी लर्निंग होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं, तो अगर हमारा अप्रोच पहले से है कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, कुछ ऑफर करने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं, then you would be enjoying। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में लेने जा रहे होते हैं पगार, प्रमोशन, प्रोफाइल, पोजीशन, इन्हीं सब चक्करों में हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। चूंकि हम ऑफर करने नहीं जा रहे हैं, देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो एक्साइटमेंट। एंड एक्साइटमेंट कहां से आएगा? जब मैं पढ़ूंगा। मैं डॉक्टर वर्गीस, मैं आनंद में रहता हूं, मैं अमूल हमारे आनंद में है, और मैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी नहीं पढ़ी है। मोटिवेशन कहां से आएगा? जब मैं पढ़ूंगा
कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 365 साल के एक साल में 150 बार रेजिग्नेशन सरकार को भेजा, तब समझ में आएगा फ्रस्ट्रेशन क्या होता होगा। तब समझ में आएगा कि जब लाखों लोगों को मिलने के बाद कुछ हजार रुपए चंदा इकट्ठा करने के बाद जब मशीन बनाते और मशीन आया और उसी दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और उनको जाना है, त्रिभुवन दास पटेल पे क्या गुजरी होगी, किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन आया होगा, ये जिस दिन आप समझ जाएंगे आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोगों के साथ तो क्या क्या हुआ है। जब आप महाभारत में युधिष्ठिर को देखते हैं तो आपको लगेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति थी कि अगर उसको क्रोध आ जाए तो कोई कृष्ण, कोई अर्जुन, कोई भीम नहीं चाहिए था। उसका क्रोध अकेला पर्याप्त था दुश्मन पूरी सेना जला देने के लिए। उसको अपनी शक्ति पता थी। पर उस व्यक्ति ने महाभारत में सारी पीड़ाएं झेलने के बाद, सारे आरोप झेलने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद भी कभी क्रोध नहीं आया। मेरी शक्ति मुझे अगर पता हो तो क्रोध कभी नहीं आएगा। राम को अपनी शक्ति पता है इसलिए कभी क्रोध नहीं आता है। क्रोध करना व्यक्ति की अपने बारे में अज्ञानता है। ये मैं नहीं बोलता, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये बाइबल भी बोलता है, ये गीता भी बोलता है। क्रोध करना व्यक्ति की अपने बारे में अज्ञानता है, इसीलिए क्रोध आता है। इसीलिए हम पढ़ते ही नहीं है। हम पढ़े तो हमको पता चले। हम जानते ही नहीं दुनिया में किसी के बारे में। हम आनंद से हैं, हम AM नाइक की बायोग्राफी नहीं पढ़े हैं, द नेशनलिस्ट। हम आनंद से हैं, हमने अमूल की, वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, आई टू हैड अ ड्रीम। हम एकेडमिशियन हैं और हमने नारायण मूर्ति की बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नहीं पढ़ी है। ऑटोमेटिकली हमारी जब रीडिंग कमजोर होती है तो सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम जिस परिस्थिति से निकल रहे हैं, इस परिस्थिति से हमसे पहले हजारों लोग निकल चुके हैं, हजारों लोग निकल चुके हैं। महाभारत का एक मैं प्रसंग आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगेन, भीष्म शैया पे लेटे हुए हैं और पांडव आके कहते हैं कि पितामह हम युद्ध जीत चुके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है, आप बताएं आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भीष्म पितामह बोले अब क्या अंतिम इच्छा, अब तो मैं पड़ा हुआ हूं, किसी दिन मर जाऊंगा, तो ऐसी जगह पे मेरा अग्नि संस्कार करना जहां पे आज तक किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। ये भीष्म पर्व का हिस्सा है। एंड आप जान करके ताज्जुब में आएंगे, एक बहुत बड़े ऊंची पहाड़ पर पांडव उनको भीष्म पितामह की डेड बॉडी को ले जाते हैं, वहां पे अंतिम क्रिया करने वाले होते हैं। तब तक भीष्म पितामह की जो आत्मा है वो ठहाके लगा के हंसने लगती है और बोलती है कि जिस जगह पे तुम मेरी अंतिम क्रिया कर रहे हो, इस पहाड़ की चोटी पे, यहां पे अब से पहले हजारों भीष्म पितामह की अंतिम क्रिया हो चुकी है, लाखों पांडव और द्रोणाचार्य की अंतिम क्रिया हो चुकी है। The concern is, ऐसी कोई समस्या आप नहीं झेल रहे जो आपके पहले ये समस्या किसी ने ना झेली हो। ऐसा कोई काम आप नहीं कर रहे हो जो आपसे पहले ये काम किसी ने ना किया हो। ऐसा कोई भी सिचुएशन आप फेस नहीं कर रहे हो जो आपसे पहले सिचुएशन किसी ने ना फेस किया हो। एवरी सिचुएशन इज बीन एनकाउंटर्ड बाय समवन एल्स। साइकोलॉजी कहती है कि एक आइडिया दुनिया में एक साथ 6 लोगों को आता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ए से अलेक्जेंडर जब तैयार हो रहा था और ए से एरिस्टोटल जब उसको तैयार कर रहा था, उसी समय सी से चाणक्य, सी से चंद्रगुप्त को भी तैयार कर रहा था और दोनों को ही एक सूत्र में दुनिया को बांधना था। दोनों ही 2 जगह पे इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे थे, इधर एरिस्टोटल उधर चाणक्य। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप देखिए, कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में आइडियाज एक समय ही आते हैं। कुछ लोग उसको मटेरियलाइज कर ले जाते हैं, कुछ लोग सोच करके छोड़ देते हैं। बट द कंसर्न इज, ये आइडियाज को हम पकड़ेंगे कैसे? अगर हम सोशल मीडिया से निकलेंगे तब ना। हमारी समस्या ये है, परमार सर मैं सही हूं या गलत हूं? पूरा जीवन हमारा सोशल मीडिया में खर्च हो जाता है। सोशल मीडिया पे देख के परेशान है। किसी ने लंबी कार ला दी तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, किसी ने बड़ा घर बना लिया तो हम बर्बाद हो जाते हैं, कोई यूएस घूमने चला गया तो हम परेशान हो जाते हैं। अलग अलग जगहों से हम परेशान हैं, बिना मतलब के परेशान हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो वो इसी एप्पल की तरह है। जो सत्य आपको दिख रहा है एक्चुअली वो सत्य है नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको फोन करने से मुझे डर लगता है। मैं बोलता हूं क्यों?
अरे आप बहुत बिजी रहते हो, आपके हम फेसबुक पे देखते हैं बहुत सारे सेशन चल रहे होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई सेशन दिन में 2 घंटा होता है, 24 घंटे में से 2 ही घंटे, 22 घंटे तो मैं नौरा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। बट सोशल मीडिया पे ऐसा रिफ्लेक्ट होता है एज इफ मैंने अपडेट मारा है कि मेरा आज लेक्चर है, तो लोगों को लगता है पूरे दिन ये लेक्चर में ही होगा। भाई लेक्चर में 1 घंटा आदमी होता है, बाकी 22 घंटा में फ्री हूँ। बाई चीज हम देखते ही अलग है। हमने फेसबुक को ही बुक बना लिया है, हमको ऐसा लगता है पूरी दुनिया। आजकल तो मुझे बहुत सारे लोग आते बोलते पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां लड़ी। मैंने कहा मैं तो यूपीएससी वालों का इतिहास वर्षों तक पढ़ाई है, 2 ही तराइन की लड़ाई हुई, बाकी 15 लड़ाइयां कब हुई उसका इतिहास में कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं मान लेता हूं कम्युनिस्टों ने, मार्क्सिस्टों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने इतिहास खराब कर दिया, पर 15 में से 2 और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कहीं तराइन की 2-4 और लड़ाई होनी चाहिए थी। पॉइंट इज हमको ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए, हमको ऑथेंटिक लिटरेचर पढ़ने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। मैं बहुत सारे एकेडमिशियंस को पूछता हूं कि सर आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे हो, मुझे समझ में आता है इंस्टा को क्या करते हैं। मतलब मैं भी इंस्टा पे हूं, लेकिन मैं लिंक्डइन पे भी हूं, मैं कोरा पे भी हूं, मैं यूट्यूब पे भी हूं, मैं भी इंस्टा पे भी हूं। आप कम से कम लिंक्डइन और यूट्यूब पे आप कुछ अपने डालो तो सही, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आप कुछ को लगता है कि दुनिया को शेयर करना चाहिए, आप डालिए। भले कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ये उनकी प्रॉब्लम है, बट एज एन एकेडमिशियन मेरे थॉट्स, मेरे आइडियाज यूट्यूब पे होने चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मैं फेसबुक पे लिख सकता हूं तो यूट्यूब पे मैं क्यों ना डालूं। द पॉइंट इज आई शुड बी एट अ राइट प्लेटफॉर्म इन द सोशल मीडिया। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं असली मुद्दों पर। अभी तक भी असली मुद्दा था, पर यह थोड़ा सा अलग है। हमारे दुख का जो दूसरा कारण है वो है हमारी हाइपोथेटिकल डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस। मेरे पास ली का जूता होना चाहिए, मेरे पास, और ये क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने आधा आतंक मचा के रखा है। वो आते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ घर बैठे आपको महीने के 12 लाख रुपए आएंगे। वो ऐसा ऐसा बताते हैं कि कई बार हमको ऐसा, मैं ये नहीं बोलता हूं नहीं होता है, होता है, लेकिन घर बैठे तो कुछ नहीं होता है, उसमें भी आपको बहुत ही रिगरस फॉलोअप करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी के पॉकेट से पैसा निकालना, राजू सर फाइनेंस के एमबीए के व्यक्ति हैं, मैनेजमेंट के, मेरी बात से एग्री करेंगे, मार्केट में लोगों के थैली से पैसा निकालना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि घर बैठे आप पैसा कमा लोगे। ये जो डे ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, अभी आज सुबह ही मेरी एक जगह पे बात चल रही थी और बोले कि सर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के मेडिकल और फार्मेसी के जो फैकल्टीज होते हैं वो थोड़े दुखी ज्यादा क्यों होते हैं। मैंने कहा दुखी नहीं होते हैं, उनकी समस्या अलग है। उनकी समस्या ये है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तभी उनको बोला जाता है बेटा जब तुम 12th में अच्छी मेरिट लाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, फार्मेसी करोगे, मेडिकल करोगे, एंड तुम्हारे अकाउंट में महीने का लाखों रुपए सैलरी ड्रॉ होगा। फिर वो इंजीनियरिंग करते हैं, फिर वो फैकल्टी बनते हैं, और फिर वो लाख रुपए नहीं आता है, फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो वो दुखी सैलरी से नहीं है, वो दुखी 9th स्टैंडर्ड से लेकर के मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिकल की जो प्रक्रिया के दरमियान जो उनके दिमाग में डाला गया होता है उससे। दूसरा दुख का कारण, उनके कुछ क्लासमेट्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री या तो शुरू करते हैं या तो इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, तो अब्रॉड चले जाते हैं। अब वहां से वो सीटीसी बताते हैं, मेरा तो सीटीसी 1.5 CR है। अब जो ही 1.5 CR बंदा सुनता है तो उसको लगता है कि मतलब मेरे पीछे बैठता था, क्लास का CR मैं था और CR में ये कमा रहा है, और वो दुख का अगला कारण है उनका। माय पॉइंट इज, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ये आपकी चॉइस है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको उठा करके टीचर नहीं बनाती है, आप टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, इट्स योर चॉइस, नॉट द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सेप्ट करने में ही हमारी भलाई है और उसी में ग्रोथ है। एंड देयरफॉर आई हैव पुट फॉरवर्ड दिस पिक्चर। महात्मा गांधी इस चीज को हमेशा कहते थे कि जब भी आप दुखी होइए, अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देखिए,
अपने आप आपको लगेगा कि आप बेहतर परिस्थिति में। आप दिन में एक बार, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके 3 फैक्ट्रियां हैं, अच्छा खासा उन्होंने पैसे बनाए हैं, तो कभी कभी मेरी मुलाकात उनसे होती है, तो ऐसे जब बात होती है तो बोलते पवन एक काम करने का, दिन में एक बार टाइम निकाल करके अपने शरीर के सारे ऊर्जे पुर्जे को छूने का और उनको थैंक यू बोलने का। थैंक यू, आप मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू, अभी भी आप मेरे सर पे हैं, धन्यवाद, आप अभी भी मेरा साथ दे रहे हैं। आप अपने हाथों को पूरा एक बार स्पर्श करिए, अपने शरीर के हर एक अंग को बारी बारी स्पर्श करके आप सबको एक बार धन्यवाद बोलिए, एक बार दिन में धन्यवाद बोलने का। ही इज ऑफ अराउंड 65। आपको मैं बताऊं, एक भी बीमारी बंदे को नहीं है। अब इसका कितना संबंध है बीमारी का मुझे मालूम नहीं है, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ, लेकिन ही ऑलवेज डू से कि पवन मैं अपने शरीर के हर एक अंग को थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि वो मेरे साथ मेरा साथ दे रहा है, मेरे शरीर का साथ दे रहा है। कितनों को लगता है कि ये पॉइंट में दम है? यस, माइक ऑन करके हम लोग अपने बयान, अपने आइडियाज को सब रख सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये चीज करना चाहिए, दिन में एटलीस्ट एक बार अपने शरीर के सारे अंग उपांग को थैंक यू बोलना चाहिए? Yes, sir, it is true. जरूर करना चाहिए। थैंक यू दिव्यांग सर। अब हमारे साथ दिक्कत हमको इजीली अवेलेबल है, आप उनसे पूछिए जिनके पास शरीर के कुछ ऊर्जे पुर्जे किसी भी रीजन से नहीं है, उनको पूछिए कि उनकी उसकी क्या कीमत वो पे करते हैं, क्या कॉस्टिंग है उसकी। हमारे कल्पनाओं से बहुत परे है, हमको परमेश्वर ने दिया है और अभी तक संभला हुआ है। हमारे परिवार में हमारे पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछिए जिनके पेरेंट्स नहीं, उनकी हालत क्या है। आपके पास पत्नी है, आपके पास पति है, आप उनसे पूछिए जिनकी पत्नी या पति नहीं है, उनकी दशा क्या है। आपके पास संतानें हैं, आप उनसे पूछिए जिनकी संतानें किसी भी कारण से नहीं है। आपके पास पड़ोसी हैं, आप उनसे पूछिए जिनके पास पड़ोसी नहीं है। परमार सर तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, मेरे सीनियर उमरीगर सर उनके पड़ोसी हैं। आपके हमारे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे जब मैं बीवीएम में था तब। आप तो हमारे पड़ोस में कोई है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ बड़ौदा, मैंने फ्लैट लिया, जब मैं रहने आया था तो मेरे पड़ोस में 2 पड़ोसी थे। अब मैं अकेला बचा हूँ, एक कनाडा चला गया और एक सूरत चला गया। अब 4 फ्लैट है मेरे फ्लोर पे, मेरा अकेले का फ्लैट है जो एक्टिव रहता है। मैं जब टूरिंग पे होता हूँ तो मैं टेंशन में रहता हूँ कि मेरी वाइफ को अगर अचानक जरूरत कुछ पड़ जाए तो आसपास में कोई पड़ोसी ही नहीं है। पड़ोसी है, उससे हम संबंध क्यों ना बनाए। अगेन महाभारत की ही एक कहानी है, महाभारत में मेंशन नहीं है, बाद में दंत कथाओं के तौर पे पॉपुलर हुई, और उसमें एक कहानी है और इसी पे बेस्ड है कि कुआं तीसरे कुएं को पानी दे रहा था, बीच में कुआं था उसको पानी नहीं दे रहा था, ऐसा भीम ने देखा और उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा ऐसा क्यों। तो भगवान कृष्ण बोले एक कलयुग है, कलयुग में भारत ईरान की मदद करेगा, पाकिस्तान की नहीं। कलयुग में चाइना वहां से उठकर श्रीलंका की मदद करेगा, भारत की नहीं। अमेरिका बगल में ब्राजील की मदद नहीं करेगा, वहां से उठ के आके भारत की मदद करेगा। द पॉइंट इज, पड़ोसी हमेशा प्रिय नहीं होंगे। क्यों ना मैं अपने आसपास के लोग, जो मेरा कलीग है, जो मेरे पास बैठते हैं, जो मेरे इमीडिएट बॉस है, जो मेरा इमीडिएट जूनियर है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई, कई बार मैं लोगों को पूछता हूं कि आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब बात नहीं हुई, 15 दिन हो गए। क्यों? जिस भाई के साथ आप एक चादर में ठंडी में सोते थे, जिस भाई के साथ कई बार आप एक थाली में खाते थे, जिस भाई के साथ एक चॉकलेट आप शेयर करते थे, जिस भाई से आप छोटी छोटी हर बात शेयर करते थे, कई बार अगर बाहर किसी से झगड़ा हो गया तो आपका भाई आपके लिए खड़ा होता था मार खाने के लिए, वो भाई को अचानक आप बड़े होने के बाद भूल कैसे सकते हो। मुझे एक चीज कभी समझ में नहीं आती है कि उस बहन को हम कैसे भूल जाते हैं जिसकी एक स्माइल के लिए हम दिन भर इतनी कसरत करते थे। हम बड़े हो गए, हमारा परिवार हो गया, वो बड़ी हो गई, उसके परिवार हो गया, इसका मतलब हम दूर हो गए। हमारे इमोशंस टेम्परेरी हैं, हमारी खुशियां जहां बसती हैं उन जगहों को हम छोड़ करके वहां खुशियों को ढूंढने लगते हैं जहां पे एक्चुअली खुशियां हैं नहीं। एंड देयरफॉर इमोशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा, आप जो देंगे आपको वही मिलेगा, आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। मुझे याद जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी के साथ, हम लोग बाबा बोलते हैं,
तो हम लोग दादाजी के साथ अगर किसी फंक्शन में, किसी शादी तिलक किसी के यहाँ गए, तो वहां पे दूसरे वयोवृद्ध लोग भी होते थे। तो अगर मान लीजिए कि मैं अकेले पहुंच गया, किसी को मिला, अच्छा 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 अच्छा, किसके पुत्र हो, अच्छा किसके घर से हो, पुत्र तो नहीं पूछते थे, किसके घर से हो, पंडित विश्वनाथ, अच्छा 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 अच्छा, वो पिपरीचा वाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और उनके पुत्र वो जो जयप्रकाश जी अभी कहाँ पे हैं, अच्छा वहां पर, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उनकी शादी वहां हुई थी, वहां मैं गया था। पूरा ट्री, पूरा ट्री वो वयोवृद्ध आदमी मेरे से मिलने के बाद याद करते थे, मेरे कौन से मामा, कौन से चाचा, कौन से नाना, कौन से नानी, कौन से फूआ, कौन से, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता था इनको इतनी पंचायत क्यों, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि अभी डेवलप नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है। अब मुझे समझ में आता है कि वो उस समय अपने दिमाग में मेरे परिवार की पूरी नेटवर्किंग सेट करते थे, उनकी अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करते थे। अभी हालत ये है, और बहुत सारे लोग, पुरोहित से मेरी बात से एग्री करेंगे, जोसेफ से मेरी बात से एग्री करेंगे, कि इमीडिएट हमारे मामा के लड़कों के बच्चों के नाम हमको पता नहीं होते हैं। परमार सर मैं गलत बोल रहा हूं? हमारे मौसा के पोतों के नाम हमको नहीं पता होते हैं, हम किसी को नाम से ही नहीं बुला पाते हैं, ये हमारी दशा है। लेकिन टीम के 12 प्लेयर हमको पता है, हमको ये पता वरुण धवन की जो है कूली फ्लॉप हो गई और उसमें हीरोइन सारा अली खान है, उन सबके नाम याद है। लेकिन हमारे उन लोगों के नाम याद नहीं है जो एक्चुअली जब हम कभी धरती से जाएंगे तो हमारे अंतिम क्रिया में आएंगे, हमको उनका नाम मालूम नहीं है। हमको उनका नाम मालूम नहीं है जिनके बिना हमारे घर का कोई कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। माय कंसर्न इज, जब आपको पता नहीं होगा तो आपकी संतानों को कैसे पता होगा, और जब आपकी संतानों को पता नहीं होगा तो जब कल की तारीख में अकेले पड़ेंगे तो उनको कंधा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि हमारे सारे सामाजिक संबंध, हमारे पारिवारिक संबंधों को हम दुरुस्त करें, और इसको हमेशा पैसे से ना नापें। आपको एक एग्जांपल देता हूं, सामाजिक होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये है जापान की एक कपल, भारतीय कपल जापान गया, वहां गार्डन में अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे। बच्चा जो है एक नया प्लास्टिक का प्लेन लेके गया था, उड़ा रहा था। वहीं पे एक जापानी कपल अपने बच्चे के साथ आया हुआ था। इंडियन कपल का जो बच्चा था उसका प्लेन जाके जापानी बच्चे को लग गया और जापानी बच्चे को ब्लीडिंग होने लगी। सुनाई दे रहा आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। यस। जापानी बच्चे को ब्लीडिंग होने लगी। इंडियन कपल टेंशन में कि अब तो फंसे, अब तो कोर्ट में जाएंगे, जेल में जाएंगे, अब सब नौटंकियां चालू होंगी। जापानी मेल केम, ध्यान से सुनिएगा, जो जापानी कपल में से जो मेल था ही केम फॉरवर्ड, और जो इंडियन बच्चा था उसको उसने प्लेन उड़ाना सिखाना शुरू किया। उसने उसको 10 मिनट प्लेन उड़ाना सिखाया, वापस गया, फिर अपने बच्चे को, उसकी माँ ऑलरेडी उसको केयर ले रही थी, ही ज्वाइंड हिज वाइफ। इंडियन मेल को लगा कि मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ courtesy, and then Indian male went to the Japanese couple and said, I apologize for the mistake of my child. And Japanese male said, Japanese wife said, मतलब जो फीमेल पार्टनर थी, she said, no 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 no, he has taught how to use plane, how to play with plane, so no issue now, and matter close हो जाता है। इंडियन कपल टेंशन में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत होता तो अब तक तो कई बार झिकम झिक एंड लाफाबाजी चालू हो जाता है, गाली गलौज जो भी है, जो भी हमने वर्ड लिस्ट तैयार की होती है बिना स्कूल कॉलेज में गए, वो वर्ड लिस्ट का उपयोग शुरू हो जाता। इंडियन कपल टेंशन में अपना, और पूरे रात सोचते रहे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे भी लोग धरती पे हैं क्या, ऐसे भी लोग धरती पे हैं क्या। दूसरे दिन मेल अपने ऑफिस में गया, जहां पे जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था, एंड अपने जापानी काउंटर पार्ट से उसने पूछा कि ऐसा कल मेरे साथ हुआ, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, aghast, and then Japanese counterpart said, sir, in 1945, August 1945, it was a turning year in our life. Reason being, 1905 when we defeated Russia first time,
From 1905 to 1945, we did almost number of wars. We fought against China, we fought against Korea, we fought against Vietnam, we fought against Australia, we fought against almost all the neighbors. Not even a single we left. We conquered also many. हमने सब किया. हमने यूएस को भी तबाह कर दिया, पूरे का पूरा उनका पर्ल हार्बर. पर 1945 नागासाकी हिरोशिमा 6 और 9 अगस्त का होने के बाद हमने एक चीज रियलाइज किया, एंड दैट इज लड़ाई में कुछ रखा नहीं है. लड़ाई समस्याओं को बढ़ाने के लिए होता है. समस्याओं की जड़ पे हमला करो. और समस्या की जड़ क्या थी कि आपके बच्चे को प्लेन उड़ाना नहीं आता है. समस्या की जड़ थी बच्चे को प्लेन उड़ाना नहीं आता है. इसीलिए जापानी मेल वेंट टू टीच हाउ टू प्ले विद प्लेन. हमारी अधिकतर समस्याओं का कारण है कि समस्याओं के मूल में हम जाते ही नहीं है. मैं सही में गलत हूं? वेरी ट्रू सर. समस्याओं के मूल में हम नहीं जाते. सतरा भगवान की कथा का जो 3रा अध्याय उसमें यही है. महाराजा चंद्रकेतु जब उनके सामने दोनों साधु पकड़ के लाए जाते हैं, तो उन दोनों वाणिये पकड़ के लाए जाते हैं, तो बनियों को सुनते ही नहीं चंद्रकेतु उठा करके उनको जेल में बंद कर देते हैं. लो, बात खत्म हो गई. द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम. रूट कॉज क्या है, रूट प्रॉब्लम क्या है. जब रूट प्रॉब्लम अगर हम ढूंढना शुरू कर दें तो अधिकतर समस्याओं का समाधान समाप्त हो जाता है. गुस्सा आने का कारण नहीं रहता, फ्रस्ट्रेट होने का कोई कारण नहीं बचता है. किसी का माइक ऑन रह गया है गलती से. या धन्यवाद. अब होता क्या है, हमको ऐसा लगता है कि कल मैं मेरे एक सीनियर मेंबर को गाड़ी में लेके जा रहा था. अब वो गाड़ी में बैठे बैठे कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उनके हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहां से गाड़ी ले लो, यहां से गाड़ी ले लो, इधर लेफ्ट से मोड़ लो, यहाँ राइट से मोड़ लो. एंड ही इज ऑफ अराउंड 60. He was so, I mean, involved in ड्राइविंग मैं कर रहा था, इन्वॉल्व वो थे. और अगर मैं उनकी ऐसे इशारे के हिसाब से गाड़ी ना मोड़ूं तो ऐसे बोलते थे. समझ ही नहीं पाया कि गाड़ी मैं चला रहा हूं. परेशान वो थे. द पॉइंट इज हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है और उसी तरीके से वो काम करता है. हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका. आप उसको अपने जैसा क्यों कर. सास बहू के झगड़े का मूल कारण यही है. सास को लगता है कि आज तक इस परिवार में ऐसे ही काम हुआ है तो ऐसे ही होना चाहिए. बहू को लगता है आज तक बराबर था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नए मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है. यही इंडस्ट्रीज में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. सीनियर को लगता है मैंने 20 साल से अकबरी लोटा लेके मैं ऐसे ही घूम रहा हूं, ऐसे ही जूनियर्स को करना चाहिए. ऐसे पिता को लगता है कि मेरी बात मेरा बच्चा मान नहीं रहा है, ऐसे बच्चों को लगता है मेरे पिता मेरी बात को सुन नहीं रहे. द पॉइंट इज कम्युनिकेशन गैप है. और चूंकि कम्युनिकेशन गैप है इसीलिए सत्य से हम दूर हैं. एक राजा अपने मंत्री को बोलते हैं कि सत्य क्या है. मंत्री चंट रहा होगा अपने जैसा. मंत्री बोला कि बताऊंगा किसी दिन, टाइम निकाल के आपको बताऊंगा राजन, आप थोड़ा सा इंतजार करिए. एक दिन राजा साहब दरबार में आए तो देखा तो दरबार में एक बड़ा सा हाथी खड़ा है. राजा बोले ये क्या. मंत्री बोला कि सत्य की खोज चल रही है राजन, बैठिए. राजन अपने सिंहासन पर बैठे. फिर तब तक 10 सूरदास जी लोग बुलाए गए थे. मंत्री ने एक एक करके सूरदास को बुलाया. एक सूरदास आए, उन्होंने हाथी का सूंड पकड़ा. दूसरे आए, उसने टांग पकड़ा. तीसरे ने पूंछ पकड़ी. किसी ने पेट पकड़ा. सबने अलग अलग हिस्सा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने आंख पकड़ा. सब लोग पकड़े. फिर सभी लोग वापस जाकर अपनी जगह बैठ गए. फिर मंत्री ने राजा से बोला कि राजन आपको मैं बताऊंगा सत्य क्या होता है. और उसने बोला कि सूरदास जी लोग, आप लोग अभी जिस चीज को स्पर्श करके आए हैं वो हाथी है. अब एक एक करके बताइए हाथी कैसा होता है. तो जिसने पांव पकड़ा था उसने बोला हाथी केले के पेड़ जैसा होता है. जिसको सूंड मिल गई थी उसने बोला हाथी जो है सहनाई जैसा होता है. जिसको कान मिला उसने बोला हाथी तो केले के पत्ते जैसा होता है. जिसको पेट मिला उसने बोला हाथी तो नगाड़े जैसा होता है.
जिसको पूंछ मिली उसने बोला हाथी तो पूंछ झाड़ू जैसा होता है। जिसने जो पोर्शन देखा सत्य उसके हिसाब से उतना है। हमारे जीवन में भी समस्या सत्य उतना ही है जितना मुझे पता है। न मैं पढ़ता हूं, न मैं घूमता हूं, न लोगों से मैं बात करता हूं, न देखता हूं। अब तो ट्रेन में भी लोग ट्रैवल करते तो अपने मोबाइल में ही होते हैं। दे आर अनेबल टू टॉक पीपल दो जो सिटिंग बिसाइड्स। मैं बहुत बार, बहुत अच्छा लगता है, राजू सर बैठे हैं, उनके अपडेट्स बहुत अच्छे होते हैं। मूवी देख के आते हैं, उसका इतना अच्छा रिव्यू लिखते हैं वो कि एक बार मूवी देखने की इच्छा हो जाती है। मैं वैसे बहुत ही खतरनाक एंटी बॉलीवुड हूँ, मैं झेल नहीं सकता बॉलीवुड के लोगों को। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरी अपनी एक बिलीफ है जो मैंने गलती से डेवलप कर ली है, कम नहीं हो पा रही है। तो मैं राजू सर से एक बार मैं गाइडेंस लेकर के इसको कम करना चाहूंगा। और भयंकर मेरे एक एंटी बॉलीवुड फीलिंग मेरे अंदर बिल्ड हो गई है। द पॉइंट इज कि आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो बिल्ड करेंगे। द कंसर्न इज हमारा लर्निंग ही बंद हो गया है और इसके नाते हम बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। बाइबल के 14.17 नीति वचन कहता है जो झट से क्रोध करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। शॉर्ट टेम्पर। और आजकल तो लोग फैशन में बोलते हैं मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। आजकल बच्चे बोलते हैं मैं बहुत मूडी हूं। मूडी एक नया शब्द आया है। लोग अपने इंट्रोडक्शन में मूडी और शॉर्ट टेम्पर्ड यूज किया करते हैं। और इसी के ऊपर से मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। जस्ट मिनट इफ यू अलाउ मी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में चीजें आसान भी हुई हैं, थोड़ी डिफिकल्ट भी हो गई हैं। यस, पहले मैं पहला स्टॉप करूंगा तो दूसरा शेयर करूंगा। यस, आप लोग ध्यान से, आप सब लोग मौजूद है ना? आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? यस वीडियो सर। दिखाई दे रहा है? हाँ सर। यस यस। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका घर गांव के कोने में था। घर में उसकी बीवी और एक छोटा सा बच्चा था। किसान और उसकी बीवी बच्चे को बहुत चाहते थे। एक शाम किसान लौटकर घर आया तो अपने साथ एक नेवले का बच्चा भी लेता आया। बीवी के पूछने पर उसने कहा, मैं इसे बच्चे के खेलने दुलारने के लिए लाया हूं। नन्हा नेवला और किसान का बच्चा दोनों दिन पर दिन बड़े होने लगे। लेकिन 5-6 महीने में किसान का बच्चा बड़ा होने पर भी बच्चा ही रहा, जबकि नन्हा नेवला पूरी तरह जवान हो गया। वो नेवला बड़ा ही प्यारा जानवर था। उसकी चमकीली काली आंखें बड़ी बड़ी थी और लंबी सुंदर पूंछ छबरे बालों वाली थी। एक दिन किसान की बीवी को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना था। उसने बच्चे को दूध पिलाकर पालने में सुलाया और एक बड़ी टोकरी लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने किसान से कहा, सुनो जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ। बच्चा पालने में अकेला सोया है, तुम जरा उस पर नजर रखना। मुझे इस नेवले से डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? अपना नेवला वैसा ही प्यारा दुलारा है जैसा हमारा बच्चा। किसान की बीवी ने कुछ नहीं कहा। वो बिना बोले बाजार चली गई। उस दिन किसान को घर में कोई काम नहीं था। वो अपनी बीवी की हिदायत भूलकर घूमने चल दिया। रास्ते में उसे 2-4 दोस्त मिल गए। दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने में वो ऐसा मगन हुआ कि घंटों तक घर नहीं लौटा। उधर किसान की बीवी टोकरी भर सामान खरीदकर घर पहुंची। आते ही उसने देखा कि नेवला दरवाजे के पास बाहर ऐसे बैठा है जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। किसान की बीवी को देखते ही वो फौरन उसके करीब दौड़ा, मगर किसान की बीवी ने नेवले की ओर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, दैया रे दैया, खून! नेवले के मुंह और पंजों पर ताजा ताजा लाल खून चमक रहा था। तूने मेरे बच्चे को मारा है? तूने मार दिया मेरे बच्चे को? और फिर बिना सोचे समझे ही
सामान से लदी टोकरी नेवले पर दे मारी और धड़धड़ाती हुई बच्चे के पालने की ओर दौड़ी। बच्चा पालने में लेटा गहरी नींद सोया हुआ था, मगर उसके पालने के ठीक नीचे खून से लथपथ एक जहरीला काला सांप मरा पड़ा था। सांप पर नजर पड़ते ही किसान की बीवी तुरंत समझ गई कि नेवले के मुंह में खून क्यों लगा था। वो नेवले को पुकारती हुई बाहर भाग। हाय राम, ये मैंने क्या किया? तुमने तो सांप को मारकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन नेवला चुप पड़ा रहा। उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। सामान से लदी भारी भरकम टोकरी की चोट से। I hope I conveyed my message. Many times we react very fast. और रिएक्शन के चक्कर में बहुत बार हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। इसको हम लोग जो है न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं, जिनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। सो रिएक्शन दैट इज, इसीलिए बाइबल नीति वचन 16 और 32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना ये किसी राज्य को जीतने जैसा है। मतलब इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हो क्रोध है ना तो काउंट करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। अब काउंट करिए। जिनका राहु बहुत मजबूत है उनको क्रोध है तो अपने बांव की उंगली देखना चाहिए। अगर आपका शनि मजबूत है तो भी देखना चाहिए। आपका सूर्य मजबूत है तो ऊपर सूर्य को देखना चाहिए। चंद्रमा मजबूत है तो आसमान में देखिए, क्रोध आपका कम हो जाएगा। गीता अध्याय 9:25 कहता है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजुरुत्माम। आप जिसकी पूजा करते हो आप वैसे ही हो जाते हो। आप देवताओं की पूजा करोगे तो देवता हो जाओगे, आप भूतों की पूजा करोगे तो भूत हो जाओगे। आप जो चीज सोचोगे आप वही हो जाओगे। आप रोज सुबह शाम क्रोध करोगे। अब टीवी देख करके हमको कोई न्यूज अच्छा नहीं लगा तो हम उस पर गुस्सा करना शुरू करते, धीरे धीरे पता नहीं चलता हमारा नेचर ऐसा हो जाता है। और इसलिए भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 63 कहता है, क्रोधात् भवत् सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रस्थिति। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक और मैं वीडियो दिखाना चाहता था पर मैं दिखाऊंगा नहीं। इसमें सिंपल है, एक सांप जो है एक आता है और वो देखता है कि एक मकान का दरवाजा खुला है और अंदर घुसता है तो उसके शरीर में एक सौ मतलब होता है, यस सर, तो वो एक कांटा उसको चुभता है और उसको समझ में नहीं आता है वो कांटा नहीं है, उसको वो एक चाकू है बड़ा सा और वो चाकू को लपेट लेता है और लपेट के उसको टाइट करके काटने जाता है और उसकी पूरी शरीर कट जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध में हमारा होश खत्म हो जाता है और इसी नाते क्रोध हमको समाप्त कर देता है। द लास्ट पॉइंट अब मैं कंप्लीट करने आ रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु रोमाते संगोस्त कर्मणि। आप एक्सपेक्टेशंस हाई करेंगे तो आप हमेशा समस्याओं में फंसेंगे। आप जब भी इच्छाओं को हाई करेंगे तो आप समस्याओं में फंसेंगे। तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स तो इसका रिवर्स में जाते हैं। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं ड्रीम हाई, थिंक बिग। पर समस्या वही है, वही अधिकतर डिप्रेशन के कारण है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा सुसाइड्स बेंगलोर में होते हैं, क्योंकि सारे ड्रीम हाई वाले बेंगलोर पहुंच जाते हैं। आप ड्रीम बड़ा जरूर देखिए पर उससे ज्यादा फोकस करिए इन 6 चीजों पे जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। उत्साहं निश्चाद धैर्यवाद तत्तकर प्रवर्तते संग त्याग सतव्रत शब्द भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह दैट इज एनर्जी लेवल। मैं ये मानता हूं कि जब तक आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और उसके लिए फूड हैबिट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज की हैबिट होनी चाहिए। 20-20 का रेशियो, 20 मिनट योग एंड 20 मिनट का अच्छा रीडिंग रोज का होना चाहिए मिनिमम। 20 मिनट आप भगवत गीता पढ़िए, 20 मिनट आप बाइबल पढ़िए, 20 मिनट आप कोई अच्छा ग्रंथ पढ़िए। उत्साह निश्चय, आपने जो सोचा है उस डायरेक्शन में रोज एक एक कदम आप बढ़िए। धैर्य दैट इज पेशेंस लेवल, बिना मतलब कि आप किसी पे चिढ़े नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब तक तत्व कर्म प्रवर्तते संग त्याग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी यूएस ने एक नया पॉलिसी बनाया है कि आपको वीजा देने से पहले पिछले 3 साल का आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे और अकाउंट के बेस पर डिसाइड होगा कि आपको वीजा देना है कि नहीं देना है। ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि आपके 5 करीबी लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय निकालते हैं उनका एवरेज निकालिए, जो एवरेज बनेगा वही आपकी पर्सनालिटी है। तो आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता बनाइए जो आपके जीवन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और ये तब पॉसिबल है
जब आपके पास एक अच्छा मेंटर हो, आपके पास एक अच्छा गाइड हो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपने जीवन में अच्छे गाइड, अच्छे मेंटोर्स नहीं रखते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला ही चैप्टर है, दरिद्र ब्राह्मण को एक वृद्ध ब्राह्मण मिलता है, वृद्ध ब्राह्मण कहता है सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करो, तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा। मतलब एक्सपीरियंस लोगों की बातें आप सुने तो बहुत बार आपके जीवन में सफलता मिल जाती है। कथा बहुत अच्छा है, सिंबॉलिक है। अगर आप एक्सपीरियंस लोगों, इसीलिए पहले के जो बड़े राजा रजवाड़े होते थे अपने यहाँ मंत्री रखते थे। इसीलिए आप देखिएगा कोई भी बड़ा ट्रस्ट होगा यूनिवर्सिटीज वगैरह का अथवा ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे सीनियर लोग कई बार जो रिटायर हो जाते हैं उनको वापस री एक्सटेंशन दिया जाता है। द पॉइंट इज सीनियर्स आर रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। एंड गांव में बड़े बुजुर्गों की बहुत सारी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पर उनके डिसीजंस बहुत सही होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में, रिश्तेदारी में अगर बड़े बूढ़े हैं तो आप उनसे अपने बच्चों को मिलाएं, खुद भी मिलें और जानने की कोशिश करें। जीवन के बहुत सारे रहस्य जो आपको पता नहीं है आपको फिर से मिल सकते हैं। मैं एंड करूंगा इसके पहले, दैट इज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कभी भी हम घर पर आए तो दादाजी हमेशा बोलते थे घर में प्रवेश करने से पहले एक बार आंख में आंख मिला के जाना। That's it. That's it. मुझे याद है उन्होंने कभी मेरे पीछे कोई गुप्तचर नहीं लगाए, न किसी से कभी कुछ पूछा कि पढ़ता है नहीं पढ़ता, रिजल्ट अच्छा आता है नहीं आता है, क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ नहीं। One thing, whenever you come at home, अगर मैं घर पे हूं, just eyesight should match, एक बार मेरी तरफ देख लो, इतना काफी होता था। ऑब्जर्वेशन, मुझे एज अ फादर, मुझे एज अ ब्रदर, मुझे एज अ सिस्टर, मुझे एज अ हस्बैंड, मुझे एज अ वाइफ, मुझे एज अ कलीग, मुझे एज अ सीनियर, मुझे एज अ जूनियर, मुझे एज अ फ्रेंड, मेरे मित्र, मेरे परिवार के किसी सदस्य को सिर्फ देख करके अगर पता नहीं चल जाता है कि वो कौन से माइंडसेट से गुजर रहा है, इमोशनली यू आर वीक। इमोशन इसको कहते हैं कि मुझे लोगों का साइलेंस समझ में आना चाहिए। अगर आप साइलेंस समझ लेते हैं, यू आर इमोशनली स्ट्रांग। चाहे बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे सोशल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, हर एक जगह पे ऑब्जर्वेशन आपको एक बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बनाता है, जैसे कि जियो ने किया। और इन सारी चीजों को करने के लिए मैंने एक 1 ईयर पीजी डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया, मैं ही रन करता हूं। उसमें वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस, दैट इज हाउ टू गेट मेंटल पीस। इसका नाम हमने रखा है स्पिरिचुअल लीडरशिप। इसमें वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स जो व्यक्ति को एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इस टॉपिक के साथ न्याय किया है। अगर आप में से कोई व्यक्ति इस पर कुछ कहना चाहता है, कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता है, सो हाउस इज ओपन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर एंड आप लोगों ने इतना ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को मैं फिर से एक बार नमन करता हूँ। कोई है? जी सर। यस, सो जोसेफ सर। सर हमको आपका स्पीच बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो एक स्टेटमेंट बताया ना, क्रोध वही व्यक्ति करता है जो अपने बारे में अज्ञान है। अच्छे से आपने एग्जाम्पल दिए, जैसे भीम का जो बताया तो ये इतना सारा सहन शक्ति था कि क्रोध वो से लास्ट होते। So we can try our level best to control anger, but it is going to take a lot of time, lot of patience. अभी बहुत कुछ करने बाकी है। अगर आपने वो भी सकता है कि एकदम रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, वेरी क्विकली अगर कुछ क्रोध आता है तो काम करो, उनके पास उनके जा सकते हैं। तो these are all models and this thing we are going to learn. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वॉइस को क्लैरिटी थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। Any other participant, Parmar Sahib or Rekha Madam? Go ahead. Sir, good evening, sir. Pranam Nagaraj sir. Sir, Pranam. Good evening. Nagaraj from Bangalore. It was really one of the very good, sir, session that I feel I have attended during the last 8 months of the pandemic situation. And you have really explained in a very
simple manner. Very, very key aspects of, life, emotional situations and all. You have touched upon, ancient thing with latest and technological aspects and all. And you have made very valid points, sir. Because today, in wherever you go in the corporate world and all, people all talk about, achieving high target, dream high, think high, always compare yourself to others and all. That's where we always tend to end up in a stress, and we always feel ourselves belittled actually. But today you have explained a very important thing that, okay, I think we should always look at the realistic world, and also should also learn to manage both social life, family values, and we also need to bring the children in a very good manner, sir. Very, very thankful to you, sir. Great, really great, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. गुड इवनिंग सर. प्रणाम देवी. हाँ सर, फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी कि आपने जो इतने सिंप्लीफाई में करके जो चीज़ें बताई, एंड आई थिंक कितने बार होता है कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, जो फाउंडेशन है हमारी लाइफ का, विच वी आर रियली नॉट ऑब्जर्विंग, एंड जो फ्लो होता है उसमें वापस हम लोग चले जाते हैं. सो आई फील टुडे सेशन इज रियली लाइक, अगर हम इतनी चीज़ों को भी अगर ध्यान में रखें तो आई थिंक foundation strong रहेगा, and we can achieve our goals and vision mission which we want to actually achieve it. So thank you so much, sir, and I really want to convey gratitude for this wonderful session. Lot of learning is there, sir. Thank you so much, sir. प्रणाम. Okay, so, sir. Yes, sir, Pawan, sir. So on behalf of ISTD Anand chapter, we thank you very much for your precious time and great session. Right, we learned a lot, and in terms of, even Madam has also said the same thing, that spiritually portion also you had covered, right? That we follow you, that you had that good content, of the clarity and the power also, and you provided a right time with the right examples, right? Considering from the spirituality and the experimental phase as well, so everybody can connect with it. And we thank you all participants also to join us today's session. And for your knowledge, Pawan sir, we have our ISTD Anand YouTube channel, which we started after this pandemic time on online mode, so that we are putting such videos of every Friday forum onto the platform, so that our other members also can watch it later if they cannot join due to other engagement of the academic sessions and all. So we will be putting this video as well. And every Friday we are doing at 6 o'clock. And you are most welcome to join us. All other participants also can join us by clicking the same meeting ID and password. That is, meeting ID is 718-151-9916. The password is 123456. Thank you very much, Pawan sir. Once again, on behalf of ISTD Anand chapter, we thank you, and we'll be love to have you in person also once we start physical training in ISTD Anand. Thank you, sir.